السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو ڈیٹیلز میں آپ کا سواگت ہے۔ تو آج کے ہم اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں درخشہ اردو کے چیپٹر 1 کے بارے میں۔ چیپٹر 1 میں جو ہے حمد خدا عز و جل اور اس کے لکھنے والے یعنی مصنف جس کو ہم انگلش میں رائٹر کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھنے والے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کو پڑھنا جو ہے مصنف جو اس کو پڑھنا کتنا مہتوپورن ہے، وہ آپ کو آگے کس چیز میں کام آنے والا، کتنا کوشچن آنسر آ سکتا ہے، اور جو ہم پڑھیں گے اس کا جو بنیادی چیز اس کا جو لکھا ہوا ہے چاہے حمد لکھا ہوا ہے تو اس کا جو بنیادی چیز کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کو کوشچن آنسر میں کامیاب کرنے والا ہے، کام آنے والا ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر لیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے تاکہ ہم اچھے سے اس پہ دھیان دے کر پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو جو شبنم کمالی جو ہے لکھا ہوا ان کا، یہ جو بہت مہتوپورن چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے یعنی کہ بہت قیمتی چیز، اردو میں جو بول لیجیے اردو میں قیمتی چیز ہوتی ہے، جو آپ کو یہ شبنم کمالی جتنا بھی ہے، چاہے کوئی بھی کہانی کسی بھی چیپٹر کا ہو، نظم ہو، حمد ہو، غزل ہو، اس کے جو رائٹر ہوتے ہیں وہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھیے زیادہ تر کوشچن آنسر آتا ہے۔ تو میں جتنا بھی پڑھاؤں گا اور ابھی جو پڑھا رہا ہوں شبنم کمالی، یا آپ اس کو قیمتی سمجھ کر کے اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے سمجھیے، یا جہاں تک ہو سکے اگر یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ، اگر یاد ہو سکتا ہے آپ کو، اگر سمجھ سکتے تو سمجھیے، نہیں تو یاد کر سکتے تو یاد کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو پڑھیے گا تو 5 نمبر میں بھی آپ کا کوشچن آئے گا، 2 نمبر میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ جو ہو مطلب کہ آبجیکٹو کے لیے تو اس کا سمجھیے 2 یا 1 یا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو آئے گا ہی۔ تو یہ چیز ہے، تو اس کو آپ اچھے سے جب بھی پڑھاؤں گا میں جو بھی چیپٹر کا رائٹر کے بارے میں، اس کو آپ اچھے سے دھیان دے کر کے پڑھیے گا، بہت قیمتی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی کہانی ہو، حمد ہو، نظم ہو، جو بھی پڑھایا جائے گا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہوتا ہے مین مقصد جو ہوتا ہے، مین جڑ یعنی بنیادی چیز جو ہوتی ہے، ہر کسی کی بنیادی چیز ہوتی ہے بھائی کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کس بنیاد پہ کہی گئی، بات ایک ہی رہتی ہے، اسی کے اوپر بات میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے یہ جو حمد لکھا گیا ہے، یہ کیا ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے اس کا لکھنے کا، یہ جو ہے ایک ہی الگ الگ طرح سے لکھا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کو دکھایا گیا ہے اس میں، لیکن اس کا جو مین مقصد ہے، بنیادی چیز ہے صرف ایک، کیا ہے اس کا جو بیان مقصد یعنی بنیادی چیز ہوتا ہے وہ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا کو بنایا اور ان کا مرتبہ کتنا ہے، یہ جو ہر چیز ندی، پہاڑ، سمندر، جتنے بھی چیز اس کی مطلب عجائبات کو دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، شان و شوکت کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ بس اس کا بین مقصد دیکھیے، کسی بھی کوشچن ہو، آنسر ہو، دوسری بات ہے کہ غزل ہو، نظم ہو، اس کا جو بنیادی چیز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بنیادی چیز، مین مقصد جو ہوتا ہے وہی پوچھتا ہے زیادہ تر کہ یہ جو حمد لکھا گیا ہے شبنم کمالی کے دوارا، اس کا جو ہے مین مقصد کیا ہے، اس کا بنیادی چیز کیا ہے۔ تو آپ بنیادی چیز سمجھ رہے کہ بھائی شبنم کمالی جو شعر لکھے ہیں وہ حمد خدا عز و جل لکھا ہوا ان کا، اور ان میں مین مقصد وہ کہنا چاہ رہا کہ خدا کی شان جو ہے بہت بڑی ہے، خدا جو ہے بہت بڑے، ان کی قدرت کی مثال، ان کی جو قدرت ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے، وہ پوری دنیا کو بنانے والے ہیں، ہر طرف ان کا چرچا، جس چیز کو دیکھ لیجئے اس میں اللہ کی شان آپ کو نظر آئے گی، بس یہی ہے۔ تو اس کا مین مقصد اسی طرح آگے پڑھائیں گے، جس کے رائٹر ہوں گے وہ بھی کہانی ہوگی تو اس کا بھی ایک بنیادی چیز ہو، اس کو آپ اچھے سے سمجھ جائیے گا تو آپ کو کوشچن کرنے میں آپ اچھے سے سکچم، یعنی کہ آپ اس لائق ہو جائیے گا کہ آپ خود سے کوشچن آنسر کر سکیں۔ ایسے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کرایا جائے، لیکن آپ اس کو بنیادی چیز جو ہوتی ہے اس کو پہلے پڑھانے سے پہلے میں بتا دیا ہوں تاکہ آپ کو یہ کام آ سکے اچھے طریقے۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے، بہت اچھی ہے، آپ کی رائٹنگ میں بھی پریکٹس ہوگی، بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ کو سمے کی اگر وقت آپ کے پاس کم ہے تو اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لیجئے، اس کے بعد میں پڑھانا شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیے ہوں گے، اسی لیے میں اب اس ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرتے، طویل نہیں کرتے ہوئے میں اب اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ پہلے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اوپر میں لکھ دیا ہوں چیپٹر 1، کیا لکھ دیا ہوں؟ چیپٹر 1 لکھ دیا ہوں، دکھ رہا ہوگا۔ اگر دکھنے میں کسی طرح کی پریشانی اگر ہو رہی ہو، سمجھنے میں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہم کو اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جہاں تک ہم کوشش کریں گے کہ بھائی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، ہٹا کے لکھے کتاب جیسی آپ کو
जिस चीज में आपको समझ में आए उस तरह के हम कोशिश करेंगे कि समझ में, ठीक है। तो हम आगे चल रहे हैं, बता रहे थे कि चैप्टर 1 लिख दिए हैं। ये जो मेरा चैप्टर है क्या, पहला है। कौन सा चैप्टर है, इसका नाम है हमदे खुदा अज़्ज़ व जल। क्या है, हमदे खुदा अज़्ज़ व जल, ठीक है। तो चैप्टर के बारे में, तो उससे पहले जो लिखा हुआ उनके बारे में, जो लिखे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसको राइटर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, मुसन्निफ कहते हैं उर्दू में शबनम कमाली। इसके लिखने वाले कौन है, शबनम कमाली, ठीक है। देखिए जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक, ताल्लुक के माने होता है जुड़ाव। ताल्लुक के माने क्या होता है, जुड़ना, यानी कि किसी से जुड़ा हुआ, किसी को रिलेटेड चीज को दिखाना, ठीक है। ताल्लुक जो था रियासत बिहार, यानी कि बिहार से ताल्लुक रहे, यानी कि बिहार के रहने वाले थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। देखो उनका जो असल नाम था, जहाँ लिखा हुआ ना शबनम कमाली, तो उस पर नहीं जाइएगा आप, वो उनका नाम था, लेकिन उनका असल नाम जो था, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, उनका असल नाम जो था वो क्या था, मुस्तफा रजा। क्या था, मुस्तफा रजा। आप इसको अंडरलाइन कर दिए, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आपको अच्छे से पढ़िएगा ना तो आपको यहीं पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शबनम तखल्लुस है, शबनम क्या है, शबनम जो है तखल्लुस है, ठीक है। अब तखल्लुस क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे, ऐसे अभी इस बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, सिर्फ ये समझ लिया आप कि शबनम क्या है, इसका तखल्लुस है। अब मुस्तफा रजा क्या है, इसका असल नाम है। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनका जो जन्म हुआ था, पैदाइश जो हुई थी 22 जुलाई को, यहाँ पे डेट लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आता है। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को कहाँ हुआ था, पोखरेरा में हुआ था। जिला कौन था, सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी, और गांव का नाम था पोखरेरा। 1938 में 22 जुलाई को इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। इनके मजहबी मंजूबात खास तौर पर नातिया शायरी के मजमूए शायर हो चुके, यानी इसका जो मजहबी मंजूमा था, मजहबी तौर पे जो शेर व शायरी था वो क्या था, नातिया शायरी। वो क्या था, नातिया शायरी, यानी नात वगैरह का जो शायर होता है, जिसको हम नात पढ़ रहे थे कि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या थी, खास तौर पर उनका जो शेर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नातिया शायरी के मजमूए हैं, ठीक है। वो शायर का मतलब होता है कि आ जाना, किताब के रूप में आ जाना, जिसको आदमी पढ़ते हैं। इनमें उनमें किताबों का नाम आगे आ रहा है, ये जो आप आगे पढ़ा रहा हो वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा आता है, ठीक है। इनमें देखिए, इनमें जो पहला नाम है अनवारे अकीदत, इनकी किताब का नाम है। एक अनवारे अकीदत, दूसरा रियाज़े अकीदत, तीसरा ज़ियाए अकीदत, और उसके बाद देखिए फिरदौसे अकीदत, चौथा क्या है, फिरदौसे। अब 5 किताब, क्वेश्चन में है कितनी किताब, तो 5 किताब, ठीक है। और अगला है सोहबाए अकीदत। क्या है, सोहबाए अकीदत, ये है मशहूर है। ये क्या है, मशहूर के माने कि जो आदमी ज्यादातर जानता है जिस चीज को, उसको क्या कहते हैं, मशहूर कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर, बेशतर के मतलब ज्यादातर, हिस्सा के मतलब कि औकात, टाइम, दिन, हिस्सा जो है वाज़ो तबलीग, इस्लामी और वाज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार। वाज़ो तबलीग क्या होता है, आपके गांव में भी, अगर आप मुसलमान हैं तो जानते ही होंगे कि आपके गांव में मस्जिद में बहुत सारे दूसरे गांव के आदमी आते हैं, आपको नमाज की तलकीन, आपके गांव में जो है नमाज की तरफ बुलाते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ते तो आइए नमाज पढ़िए, इसी को वाज़ो, यानी कि दीन को फैलाने का काम करें। ज्यादातर ये शबनम कमाली अपनी जिंदगी का हिस्सा कहाँ व्यस्त किए, वाज़ो तबलीग में, या कहाँ, वाज़ो तबलीग यानी दीन के अंदर, दीन की बातों को फैलाने में, ठीक है। इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में सर्व के माने होता है खर्च करना, सर्व का मतलब खर्च करना, यानी कि अपना ज्यादा टाइम उसमें गुजार दिए। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। आशिक सादिक के मतलब होता है सच्चे प्यार करने वाले। देखो वो अल्लाह और उसके नबी से क्या थे, सच्चे प्यार करने वाले थे, उन पे अल्लाह और उसके नबी से सच्चे प्यार करते थे और उसकी बातों पर अमल करते थे, जैसे हदीस हो गया, कुरान में जो कहा गया उस पर अमल करने वाले थे, उसको फैलाने वाले। चुनांचा कहा गया आगे कि चुनांचा अपनी तकरीर तो आप जानते ही हैं किसको कहते हैं, और शेरी, जिसको आपके मस्जिदों में तकरीरें होती है, जलसा प्रोग्राम में तकरीर होता है, तकरीरों और शेरी तख्लीकात में उन्होंने शेरी तख्लीकात के मतलब होता है पैदा करना,
तो ये इन्होंने शेर लिखा तो उन्होंने पैदा मतलब कि लिखा ही नहीं, वही तो उनकी शुरुआत की है अपनी शेर की। तख्लीकात की माने होता है किसी चीज को नई तरीके से फिर से बनाना। शेरी तख्लीकात में उन्होंने अपने भरपूर लहाना जज्बात का इजहार किया, यानी कि उन्होंने जो अपनी तकरीर में और अपनी शेरी तख्लीकात में अपना जो उनका जो जज्बात था, उनकी जो बातें थी दिल के अंदर, पूरी तरीके से उनपे निचोड़ कर रख दिया, पूरी तरीके से क्या किया है, बता दिया। इजहार का मतलब होता है बता देना, ठीक है। तो हम देखें शबनम अली के बारे में पूरा पढ़ा दिए, हाँ अच्छे तरीके से हमको लग रहा है कि बता दिया। तो अब ठीक है, जो मुसन्निफ जो राइटर है उन्होंने जो लिखा है आपके उर्दू दरख्सा में हमदे खुदा अज़्ज़वजल, क्या हमदे खुदा अज़्ज़वजल लिखा है। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या करना। पहले हम ही बता दिए क्या करना, कि इसका बुनियादी मकसद है खुदा की तारीफ। इसका बुनियादी मकसद क्या है, खुदा की तारीफ के बारे में उन्होंने लिखा है। अब आगे शेर में तब्दील है तो उसको हम तशरीह करेंगे, जिसमें इसको क्वेश्चन भी आता है कभी, इसका बुनियादी चीज पूछेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि इसका जो शेर है, पहला शेर हुआ ये एक, दोनों मिलाकर पहला शेर, यानी एक इधर और एक इधर, दोनों मिला के एक शेर हुआ, ठीक है। तब बोलेगा कि पहले शेर की तशरीह की। तशरीह की माने होता है उसी चीज को अच्छी तरीके से बताना, उसको समझाना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करो भाई, किसी चीज को बोला उसको अच्छे से ट्रांसलेशन किया, उसको समझ में आ गया, उसी को यानी कि इसको अच्छे अपने लैंग्वेज में बताना, तशरीह करना। तो लिखा हुआ है हमदे खुदा अज़्ज़वजल में सबसे पहला शेर आपका है कि खालिके दो जहां है तू इज़्ज़े जुल जलाल। खालिके दो जहां है, आपको दिख रहा होगा, खालिके दो जहां है तू इज़्ज़े जुल जलाल, यानी कि तू जो खालिक है, खालिक यानी कि बनाने वाला, दोनों जहां का, दो जहां के माने होता है इस दुनिया और आखिरत जो होने वाली वो नहीं, पूरा का क्या तू इज़्ज़े, तू दोनों का क्या है, मालिक है। और उसका यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है, यानी कि तेरी जात जो है, तू जो है एक है, यकता के मतलब एक, तेरी जात एकता है, तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। आली के मतलब होता है तेरी जात जो है बहुत बड़ी है और किसी उसकी कोई मिसाल नहीं है, तू अकेला है। अब देखिए दूसरे शेर में कह रहा है शायद, कहना चाह रहा है कि तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क। कहना चाह रहा है कि तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, और सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। मतलब इस लाइन में कह रहे हैं कि इस जितना भी दुनिया में है रिज्क, यानी कि आपको जो खाना पीना जो भी चीजें मिलती है, पैसा, वो रिज्क जो है आपको किसके फैज से मिलता है, अल्लाह के फैज से मिलता है। और सबकी हयात मौत, कौन मरेगा कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, उसका किसको ख्याल है, सब मौला तुझे ख्याल है, यानी खुदा को इसका ख्याल है कि कौन को रहना है, किसी को जाना है। जो अगले शेर में, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवा कर तेरा ही एक जमाल है। यानी कि कुदरत खास तेरी अक्स, अक्स के माने होता है कुदरत, यानी तेरी कुदरत खास का जो है बज़्म का, पूरी कायनात पे तेरा कुदरत खास का नजर आ रहा है। और उसके बाद लिखा है कौनो मकाम में जलवा कर तेरा ही एक जमाल, हर जगह तेरा ही एक जमाल दिख रहा है। जितनी चीजों को देखो, हर तरफ देखोगे, नजर उठा के जो भी चीज दुनिया में बनी है, हर तरफ खुदा का जमाल आपको दिखेगा। वही इसमें कहना जा। अगला है कि कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। कहना चाह रहा है शायर इसमें कि कायम है सिर्फ आप ही के हुक्म से, अल्लाह आप ही के हुक्म से ये जिंदगी अभी तक कायम है, अगर तेरा हुक्म ना हो तो ये जिंदगी मुहाल। मुहाल के मतलब के नामुमकिन है, ये जिंदगी क्या है, नामुमकिन है, यानी कि तेरी कुदरत, तेरा हुक्म है तो है, और तेरा हुक्म ना हो तो ये नहीं है। बस यही कहना चाह रहा है इसमें। साहिब अक्ल फहम को, ये देख लीजिएगा, आपको पांचवें शेर में कहना चाह रहा है साहिब अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर। अक्ल फहम यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, उसको नाज यानी कि बहुत ज्यादा फक्र है तेरे क्या, तेरी जात पर। किस लिए कि आगे जो बताएगा फिर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़े हालो काल है, और तेरा नाम से जो दो जहां वाकिफ, हालो काल, वाकिफ के माने जानना, तेरे नाम को पूरी दुनिया में सब जानता है, तेरे नाम को दुनिया में हालो काल यानी कि वाकिफ है, सब तुम्हारे आपके नाम से तो आपको जानता है कि आप क्या है,
बस यही बात पे साहिब अकुल फहम को क्या है, नाज है। देखो अगले शेर में कि लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, लाख बरस अगर हम कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी कि कितनी भी बरस आप खुदा की आप हमदो सना तारीफ कीजिए, उनकी इबादत कीजिए, लेकिन ये अदा हक जो होगा कभी अदा नहीं करेगा। कहा गया है कि इसमें कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के कोख से लेकर मरने तक खाली सजदा में ही डूबा रहे तो भी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। हर चीज में खुदा का हक, हर चीज में आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक हाथ उठा रहे हैं, उनका करम है कि हाथ उठाने लायक है, सब अल्लाह का करम है। आगे वाले शेर, जुल्मत दहर में ही हमें नूरे सहर की है तलाश। जुल्मत के माने होता है अंधेरा, दहर माने दुनिया। इस अंधेरी दुनिया में नूरे सहर या नूर माने रोशनी, इस नूरे सहर की है तलाश, यानी कि अच्छे सुबह की है तलाश, रोशनी वाले दिन की तलाश है इस अंधेरी दुनिया में। लुत्फो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज है, यानी कि अपना लुत्फो करम कर दीजिए, अपना एक नज़र फिर हम लोगों पर डाल दिए। यही अर्ज कर रहा है, ये शायर कर रहा है कि ये दुनिया जो है इतनी दहर माने दुनिया, जुल्मत माने अंधेरा, अंधेरी दुनिया में जो है हमें नूर शहर, सुबह यानी रोशनी वाली दिन की इंतजार है। बस ये अपना नजर कर दीजिए, अपना एक लुत्फो करम, अपना मेहरबानी कर दीजिए, बस यही अर्ज कर रहा है शायर। अगले शेर में, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। यानी कहना चाह रहा है शायर इसमें कि जो हमारा नेक मकसद है, मकसद तो बहुत सारी चीज का होता है, लेकिन इसमें क्या करा, नेक मकसद यानी कि अच्छा मकसद जो हमारा है उसमें तू सदा कर दे हमें, यानी कि हमें सदा हर ज्यादातर हमको क्या कर दे, कामयाब कर दे, सदा कर दे तू हमें कामयाब। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। कहना चाह रहा है कि तेरे हुजूर खास में, तेरा जो खास जगह है तेरे दरबार में, यही एक सवाल है। क्या है, यही एक सवाल है कि हमें मकसद नेक में कामयाब कर दे। आगे कह रहा है, शबनम बेनवा को, देखिए आप बोले थे ना कि तखल्लुस किसे हम बता रहे, वैसे हम बताना नहीं चाह रहे अभी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए तखल्लुस जो होता है ना, तखल्लुस उसे कहते हैं कि शायर जो होता है अपने नाम के अलावा एक छोटा सा नाम रख लेता है जो अपने शेर में इस्तेमाल करता है, जो अपने शेर में, यानी देखो शेर में अभी ये शबनम लिखा है तो शेर में इस्तेमाल करता है, उसी को क्या कहते हैं, तखल्लुस। या अपने नाम के अलावा छोटा सा नाम रख लेता है, या अपने असली नाम को ही छोटा करके उसमें इस्तेमाल करने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए तखल्लुस कहते हैं, यहाँ लिखा हो तखल्लुस। समझ में? ऐसे हम आगे डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बता दें, शबनम बेनवा, बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। कह रहा है शायर कि शबनम बेना, बेजुबान, बेनवा ना बेजुबान, मैं बेजुबान हूँ, मुझे दे दे उरूजे बंदगी, यानी कि बंदगी में मुझे क्या कर दे, तरक्की दे दे। फिक्रो तलब की राह में, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। देखो फिक्र तलब यानी कि उसकी तलब, किसी चीज की तलब होती है कि हमको ये करना है, बहुत ख्वाहिश होती है, वही बोला कि राह माने रास्ता, इस चीज के रास्ते में मुझे आज ये पायमाल है। क्या हुआ, कुचला हुआ हूं मैं, बोल रहा फिक्र तलब की राह में आज मैं कुचला हुआ हूँ, कि मेरा बस बोल रहा कि नेक बंदगी में क्या कर दे, मुझे तरक्की दे दे। तो बस यही शेर शायर जो है इसमें यही कहना चाह रहा है कि खुदा की जो मिसाल है उसकी तारीफ करना चाह रहा है। ऐसे खुदा की मिसाल बहुत बड़ी है, कितना भी तारीफ करे आप, तकरीरों में करे या उनकी शेर में तब्दील करके उनकी तारीफ करे, कभी मुकम्मल नहीं। कि एक ही शेर अब इसमें आया होगा जो आप देख सकते हैं कि मतलब कि कितना भी खुदा की आप हम्दो सना करे, लेकिन उसका क्या करे, मुमकिन नहीं हो सकता, उसका हक अदा नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है इस वीडियो, अब ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते, इससे भी बेहतर अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा देखिए, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आज के देखिए इस वीडियो में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हो सकता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा और ऑब्जेक्टिव कोशिश करूंगा कि वो एक वीडियो में आपको जोड़ दूं। अगर चाहता मैं तो इसको 2 वीडियो बना सकता था,
اس کو الگ اور اس کو الگ، لیکن اس کو ایک کر دیا کہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے اس کی وجہ سے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔